Yes, good morning, students. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Okay, good Good morning. morning, ma'am. Okay, good morning, students. Looking enthusiastic. अच्छा लगा देख के. चलिए, students. Yesterday we had started with our topic that is posters, and based on topic, I had told you what is a poster, what is the purpose and the aim of making posters, how posters are being drafted, what main features you will keep in mind while drafting the poster. Now today I have sent you the PDF of some questions. Now कल तो सिर्फ आपने verbally सुन के समझा था, but today you will just visualize. Basically, you all know about the posters. Actually, you may have seen the posters many times, right? But I think there is a need to emphasize that, हाँ बेटा, this is a poster. Okay, so I have sent you some questions. We'll discuss these questions and just see these questions. Okay, and probably this is a damn easy topic. You all know, and just you all can do. Sorry. And today I will discuss these questions, and tomorrow I'll give you around 2-3 questions. Okay, we'll discuss together. Now, before starting with this, हो सकता है कल कुछ students present now, तो मैं actually I am reviving yesterday's topic briefly. Basically, what is a poster? Just in a quick wise, I'll just revise it. I told you that a poster is a useful means of making an announcement, appeal, or just to create awareness in public interest. And these posters are issued by different political parties, NGOs, education departments, family me fair, etc. These posters are visually attractive. देखने में बहुत अच्छे होने चाहिए. जब हम first impression पर देना, wow, what a picture. I mean, at one glance, attractive होना चाहिए, purposeful होना चाहिए, right? और वो I mean meaningful होना चाहिए. Then we use suggestive slogans या short words हम use कर सकते हैं. अगर किसी को ये नहीं पता हुआ what is a short verse, तो मैं आपको बता दूं. ये जो words हैं actually is writing arranged in lines which have rhythm, which often rhyme at the end. कुछ ऐसे वर्ड्स लिखना, कुछ ऐसी कोटेशंस लिखना कि लास्ट में जो वर्ड्स होते हैं उसमें एक रिदम होती है, एक राइम होती है, दैट इज वर्ड्स. एंड व्हाइल making these posters, just there is no hard and fast rule for writing. Just you have to keep in mind that you need to avoid writing long sentences. Long sentences नहीं लिखना है, paragraphs नहीं लिखना है. आप free हो, font किसी भी तरीके से you can write down. Even you can write down in a cursive way, you can write down in a curve way. अपनी handwriting को actually आप ऐसे थोड़ा सा ड्राइंग वे में भी लिख सकते हो, कर्व बना के लिख सकते हो, या स्ट्रेट आप फोल्ड करके वर्ड्स लिख सकते हो, कैपिटल लिख सकते हो, स्मॉल लेटर्स लिख सकते हो. मतलब थोड़े से कैची और अट्रैक्टिव होनी चाहिए, राइट? प्रोपोर्शनेट स्पेस you have to keep in mind. You have to use simplified drawings. And just जब आप पोस्टर बनाओगे स्टूडेंट्स, एक बात का जरूर ध्यान रखना है, just you need pencil. ओके, यू जस्ट आप जो भी मैटर उसमें लिखोगे ना बेटा, आप मैटर को लिखने के लिए यू हैव टू यूज योर ब्लू पेन. बट फॉर शेडिंग, बट फॉर ड्राइंग, एंड जस्ट जब आउटलाइन दोगे इस पोस्टर की, वो जो आउटलाइन है वो आप पेंसिल से ही दोगे. क्लियर? आउटलाइन इन द सेंस कि जो आप जो कॉलम बनाओगे ना, क्योंकि ये बॉक्स के अंदर आएगा, वो बॉक्स आप पेंसिल से ही ड्रॉ करोगे. उसके बाद शेडिंग पेंसिल से करोगे. कोई भी आप पिक्चर ड्रॉ कर रहे हो, आप पेंसिल से ही करोगे. डोंट यूज पेन. पेन यूज नहीं करना है. ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. इट इज अ पार्ट ऑफ ए फॉर्मेट विच यू हैव टू कीप इन माइंड. अगर आपको पूरा 4 मार्क्स स्कोर करना है, so you have to just work on these guidelines. Second thing is that you have to just put the theme or subject clear होना चाहिए. Details relating with that subject, with that topic.
ओके अगर आपका इवेंट पोस्टर है, मतलब सोशल इवेंट, इवेंट मतलब कोई भी ब्लड डोनेशन कैंप लगा लो आप, राइट, कोई भी क्लब कोई चीज ऑर्गेनाइज कर रहा वो लगा लीजिए आप। ओके फ्री मेडिकल चेकअप लगा लीजिए जो कैंप होते हैं, तो ये इवेंट है। इवेंट मतलब कब होगा, कहाँ होगा, ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन, वेयर, एट व्हाट टाइम, हु इज ऑर्गेनाइजिंग, या बाय हुम, हु, बाय हुम, वेयर एंड व्हेन, ये इवेंट में बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जिसमें नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी होगा। क्लियर? सो यू हैव टू जस्ट मेक इट वेरी क्रिएटिव। लिंग्विस्टिक मटेरियल आपने यूज करना है, मतलब एक प्रॉपर लैंग्वेज का यूज करना है। और वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कुछ बच्चे बोलते हैं मैम ठीक है कोटेशंस डालना है हमने, स्लोगन्स डालने हैं, क्या हम हिंदी के स्लोगन डाल सकते हैं? ये एक बहुत ही एक्चुअली ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे रेज करते हैं, और हम भी बताते हैं कि आप कोटेशंस तो डालो, बट लेकिन लैंग्वेज से रिलेटेड ही कोटेशन डालोगे, इंग्लिश मीडियम की कोटेशन डालोगे। आप हिंदी की जो स्लोगन है या हिंदी की कोई भी लोकोक्ति है या मुहावरे हैं, वो आप इसके अंदर इंक्लूड नहीं करोगे स्टूडेंट्स। These are the important guidelines, the important top points you need to follow while drawing these posters. कोई भी नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी है, इशूड बाय, अगर आपका नाम दे रखा है वो नाम हो कि आप कौन हो, किस बिहाफ पे यू हैव इशूड द पोस्टर। क्लियर? आप हेल्थ मिनिस्टर हो, आप सेक्रेटरी हो, राइट, आप प्रिंसिपल हो, मीन्स पोस्ट, जो पोस्ट गिवन है यू हैव टू मेंशन टू द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड, ये ध्यान रखना, राइट। देयर इज नो नीड टू राइट टू द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड। इन द मिडल जो लास्ट में आप इशूड बाय इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, एमसीडी दिल्ली एंड सिटी दिल्ली, ये जो चीजें आप जब पोस्टर खत्म करोगे, जब मेंशन करते हो, यू नीड टू मेंशन एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड at the corner of your column. Understood, students? Clear? Only these points you need to keep in mind while framing, designing, or drawing your posters. Now let us come to questions, students. Open your PDF. I'm reading the questions, right? Same to same, यही content मैं read नहीं करूंगी। हो सकता है while explaining I may use this content, but लेकिन इसके अलावा आप कोई और quotations हैं, कोई और प्रोवर्ब्स है, कोई और स्लोगन्स है, वो आप डाल सकते हो। ये तो सिर्फ आपके एक रेफरेंस के लिए मैंने आपको प्रोवाइड किया है। कुछ स्टूडेंट्स अगर थोड़ा वर्क हार्ड इस पे वर्ड लेबर पुट करेंगे, सो यू कैन फ्रेम योर, इससे रिलेटेड ये एक हिंट है। अच्छा अगर मैम ने ये प्रोवाइड किया है तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट में होना चाहिए। क्लियर? लॉन्ग सेंटेंसेस, लॉन्ग पैराग्राफ्स यू नीड टू अवॉइड वाइल राइटिंग ऑल दीज। सिर्फ यही ध्यान रखना है आपने स्लोगन हो गया, फ्रेजेस हो गया, कोटेशंस हो गया, प्रोवर्ब्स हो गया, राइट, आप वर्ड्स यूज करना है आपने, और बाकी कोई भी लॉन्ग सेंटेंस अवॉइड करना है बस। अट्रैक्टिव, कैची होना चाहिए, राइट। देखो 4 पॉइंट फॉलो करना स्टूडेंट्स। हेडिंग कैची, अट्रैक्टिव, कैची, ओके, मतलब आपकी जो मैटर लिख रहे हो कैची होना चाहिए, पिक्चर अट्रैक्टिव होनी चाहिए, और फोर्थ ये है इशूड बाय या इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये 4 चीजें होती हैं पोस्टर में बस, इसके अलावा कोई भी चीज आपको ध्यान में नहीं रखनी है। अब मैं नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, देखिए। यू आर अ फिटनेस ट्रेनर इन अ हेल्थ क्लब। तो यू मतलब आप लिख रहे हो एज अ फिटनेस ट्रेनर हो आप। डिजाइन अ पोस्टर in not more than 50 words to emphasize the importance of exercise in maintaining mental and physical fitness. You are this and this. अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो स्टूडेंट्स। कहा गया तो फिजिकल ट्रेनर हो, चलो ठीक है भाई, नाम गिवन है यहाँ पे, प्रेम एंड प्रिया, ओके। अब फिटनेस ट्रेनर मतलब हेल्थ ट्रेनर हो गया, ये इसकी डेजिग्नेशन होगी, पोस्ट होगी जो इशू कर रहा है। अगर एमसीटी दिल्ली होता, एनसीटी दिल्ली होता, इन पब्लिक इंटरेस्ट होता, तो उसकी जगह पे आप वो लिखते। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी हेडिंग। हेडिंग देखो, टू एम्फसाइज, एम्फसाइज होता है जोर डालना, इंपॉर्टेंस किस पे, द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन मेंटेनिंग मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ किसका लिखोगे, योगा इन मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस लिख दिया। आप इस पे बहुत अच्छा स्लोगन भी लिख दो,
A healthy mind resides in a healthy body. Right? Early to wake up, early go to bed, early to wake up makes a man healthy, wealthy and wise. याद है ना ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये लिख दीजिए आप. राइट? उसके बाद क्या लिखोगे कि इंपॉर्टेंस पूछा है, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है एक्सरसाइजेस करने के, तो लिख दो. इसमें आप थ्रू की जगह वर्ड्स इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हो, वेज भी लिख सकते हो. जैसे मॉर्निंग वॉक हो गया, फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, एरोबिक्स आप लिख सकते हो. क्लियर? ब्रेस्ट वॉक आप लिख सकते हो. ओके. अब ये देखो लास्ट में इशूड बाय हो गया, ये ऑलरेडी आई हैड टोल्ड यू. और यहाँ पर कोई भी एक अट्रैक्टिव आप इसमें एक पिक्चर बना दीजिए, उसको पेंसिल से शेड कर दीजिए. आप यहाँ पर सिर्फ एक मेडिटेशन की पोज ना देके, कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं या दस यू आर प्लेइंग, कुछ स्कीपिंग कर रहे हैं, राइट? इफ द स्टूडेंट्स दे आर डूइंग एरोबिक्स, आप वो पिक्चर इसमें मतलब ग्राफिक्स बता सकते हो. एंड जस्ट यू नीड टू क्लोज एवरीथिंग इन अ बॉक्स. देखिए इस पूरे अगर आप क्वेश्चन को देखते हो स्टूडेंट्स, इसमें चार चीजें इंपॉर्टेंट है. हेडिंग, सेकंड जो मैटर है स्लोगन्स में, जिंगल्स में, वर्ड्स में लिखा है वो. थर्ड आपका ग्राफिक पिक्चर. फोर्थ इशूड बाय. सिर्फ ये चार पॉइंट आपने मतलब दिमाग में रखने एंड यू हैव टू इनक्लोज इन अ बॉक्स. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है योर स्कूल Sharda Vidyalaya is organizing cultural evening to collect funds. आप सुनो बेटा, मैंने क्या कहा था, कोई भी लिमिटेड फर्म्स है, प्राइवेट फर्म्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? या पब्लिक इंटरेस्ट की भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है. जैसे फ्री हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करती है गवर्नमेंट, फ्री आई चेकअप ऑर्गेनाइज करती है गवर्नमेंट, तो वो हो गया आपका इवेंट. ध्यान रखना, अगर मैं आपको बोलती हूँ बेटा ओके जस्ट डू अ पोस्ट ऑफ से नो टू टोबैको, या पॉलिथीन इज वेरी हार्मफुल, बी काइंड टू दीज स्ट्रे एनिमल्स, तो यहाँ तो इवेंट नहीं होगा ना. कब, कहाँ, किस टाइम, राइट? अगर आप मैंने कहा है दैट पॉलिथीन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, कैसे है वो पब्लिक इंटरेस्ट का है, राइट? तो उसमें आप पॉलिथीन से नो टू पॉली बैग्स, दे आर वेरी हार्मफुल, राइट? एंड इट कॉजेस मेनी डिजीजेस के नाम लिख दीजिए, राइट? स्मोक करते हुए उसको क्रॉस दिखा दीजिए. तो वो और इवेंट में बहुत फर्क है. अब नाउ सी, आई हैव गिवन यू द नेम ऑफ द स्कूल हो गया, कौन ऑर्गेनाइज कर, क्या ऑर्गेनाइज करा, कल्चर इवनिंग, किस चीज के लिए, फॉर व्हाट? फंड कलेक्ट करने के लिए. किसके लिए? स्लम बच्चों के लिए, जो झुग्गी झोपड़ी में बच्चे रहते हैं. इसका मोटो ये कि उन लोगों के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है, ये आपको मतलब इस इवेंट में बताना है. अब यहाँ देखो, हालांकि जो मैंने आपको प्रोवाइड किया क्वेश्चन इतना मतलब सिर्फ इसमें एक लिखने में अट्रैक्टिव वे है, आप यहाँ पर उससे रिलेटेड कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो. It is your efforts, your way, your creative work to make your poster attractive. The state human resource development minister has consented to be the chief guest. अब यहाँ पे chief guest भी बता रखा है, तो आप लिख दोगे ये chief guest हो गए. Draw a poster to be displayed in different areas of your locality. You are the culture secretary of your school. अब यहाँ पे लास्ट में जो आप करते हो issued by, तो इसमें कौन है? कल्चर सेक्रेटरी है, राइट? तो क्या आ जाएगा आपका? सेक्रेटरी लिख दिया आपने. फिर यहाँ पे लिख दीजिए कौन सी सोसाइटी है, कौन सा स्कूल है, क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है? कल्चर इवनिंग. किस लिए? फॉर व्हाट? रीजन भी दे दो शॉर्ट में, टू कलेक्ट फंड्स. आप ऐसे नहीं लिखोगे शारदा विद्यालय सोनीपत इज ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चर, पूरे पैराग्राफ में नहीं लिखोगे. आप इसको थोड़े फॉन्ट, आपका फॉन्ट जो लिखने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छे से होना चाहिए. कल्चर इवनिंग है किस लिए? टू कलेक्ट फंड्स. अब सुनो, ये इवेंट हो गया. अब यहाँ तो कह दिया कि इवेंट मतलब कलेक्टिंग फंड्स के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हो. अब आप टाइम दोगे कब, मतलब डे, डेट और टाइम दे दोगे. फिर आप इसमें लिख दोगे नहीं यही नहीं, इसमें एक हमारे जो ऑनरेबल जो स्टेट मिनिस्टर है वो भी एक चीफ गेस्ट है. और यहाँ पर अगर आप कल्चर जो कल्चर इवनिंग है उसमें क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या मतलब उसमें डिस्प्ले कर रहे हो, या ये लगा लो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज हैं वो मेंशन कर दोगे. और फिर उसके बाद कहते हैं ना कम वन कम ऑल,
और फिर लास्ट में एक्चुअली आपने फंड कलेक्ट करने के लिए तो आपने ऑर्गेनाइज किया, फ्री फंड का तो किया नहीं है, तो फ्री टिकट्स तो आप लिखोगे नहीं लास्ट में, तो क्या लिखोगे? जस्ट आप अपने अकॉर्डिंग लिख दो कि जस्ट टिकट किसकी क्या है, अडल्ट की क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। आप ऊपर लिखो टिकट्स अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन ऑब्लिक अडल्ट। अब बच्चों का उसमें बता दीजिए 10 रुपीज, राइट, या अडल्ट का है उसका आप लिख दीजिए 20-25 रुपीज, ऐसा जो भी है, क्योंकि आप फंड कलेक्ट कर रहे हो। और लास्ट में यू नीड टू मेंशन दी पोस्ट designation या name of the organizer. Now move to next question, students. As president of Lions Club of Vasundhara City, Indrapuram, Ghaziabad, design a poster in not more than 50 words for promoting good health through health mela. कह रहे हैं यहाँ पे आपको बताना है क्या प्रमोट करने के लिए? गुड हेल्थ, कि किस तरीके से लोग जो है हाउ दे कैन मेंटेन देयर हेल्थ, हाउ दे कैन बी हेल्दी, किसके थ्रू? हेल्थ मेला एक तरह से फेयर है। कुछ एक फेयर ऐसा होता है जैसे हम बोलते हैं ना, एग्जीबिशन फेयर है, साइंस फेयर है, वो मतलब वो मेला अलग है, साइंस एग्जीबिशन। और आप वैसे बोलते हो आई एम गोइंग टू विलेज फेयर, वो मेला अलग है। ये हेल्थ मेला है, मतलब किस तरह का हेल्थ मेला? अपने आप को हेल्दी रखने का तरीका। तो सबके माइंड में कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव वर्क होगा। बस इसमें आपने नेम ऑफ द ऑर्गेनाइज क्लब, नाम का क्लब का नाम दे रखा है, प्लेस दे रखा है, और उसमें आपने एक कम्युनिटी का भी मतलब कहाँ पे होगा प्लेस दे रखी है। बस ये आपने ये बताना है कि इसमें क्या क्या फीचर्स आप इंक्लूड करोगे जो कि हाँ ये करे कि रियली में इस हेल्थ मेले में ये चीजें, ये एक्टिविटीज हैं जिसके करने से अ ह्यूमन कैन बिकम फिट, राइट। अब आगे देखो, जस्ट आप ऊपर लिख दोगे हु इज, कौन सा क्लब का नाम लिख दोगे, राइट। फिर इट इज अ विजिट टू हेल्थ मेला, प्लेस, टाइम, डे मेंशन कर दोगे, हु इज द चीफ गेस्ट, और फिर एज लास्ट की तरह आप स्पेशल अट्रैक्शन मेंशन कर दोगे। और फिर इशूड बाय, कौन इशू कर रहा है ये? क्लब, कौन सा क्लब है? लॉयंस क्लब ऑफ वसुंधरा सिटी। अब आप बोलोगे कि मैडम आपने तो कहा था एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड इंक्लूड करना है, ये तो राइट हैंड साइड है, आपने लेफ्ट हैंड साइड ही लिखना है, राइट हैंड साइड नहीं लिखना है। ओके बेटा, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Design an attractive poster for an anti-smoking campaign being held in your school on the occasion of World No Tobacco Day. You may use slogans, do not exceed 50 words. I hope so ये क्वेश्चन तो सभी को बहुत अच्छे से आता होगा, राइट। इसकी हेडिंग क्या है? से नो टू टोबैको, से नो टू स्मोकिंग, राइट। कोई भी आप हेडिंग डाल सकते हो। स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ। और अब ये भी था कि बीच में रूल आया था, इफ यू फाउंड स्मोकिंग एट द पब्लिक प्लेसेस यू विल बी चार्ज 500 रुपीज, राइट। आप ऐसे भी स्लोगन पुट कर सकते हो, से नो टू सिगरेट्स, कॉमा टोबैको। Life is not be so easy to carry it away in drugs. Life is very precious. Say no to drugs. Enjoy your life. Live your life fully without drugs, without smoking. बहुत अच्छे अच्छे कोटेशन है जो आप यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने यही लिखना है। आप स्मोकिंग saps your strength, अच्छी कोटेशन है ये, saps your strength, your stamina, your energy. Say no to smoking, say join your hands with the living life, be happy. Every cigarette cuts your life short by 5 minutes. Save your precious life. ये लिख दो, you are very precious for your children. Say no to smoking. Then left hand side issued by, किसने इशू किया था? Issued by Ministry of Health. Okay, now look at the next question, students. The Eco Club of your school has launched a poster competition for an awareness driving among students about the hazardous
इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक बैग्स। और ये क्वेश्चन तो आप काफी बार अटेम्प्ट कर चुके होंगे, राइट? अब यहाँ पर जो है, ये देखो यहाँ पे नाम दे रखा है इको क्लब ऑफ योर स्कूल। ऑफ योर स्कूल है मतलब इको क्लब आ गया, आपके स्कूल का नाम आएगा। लेकिन मैंने बता रखा है अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा, यू नीड टू मेंशन योर द नेम ऑफ योर स्कूल। तो प्लीज एक रूल है ताकि आपको स्टार्टिंग से सिखाया जाए, व्हेन यू नीड टू अपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि उस एग्जाम में स्कूल का नाम लिखना अलाउड नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगी हियर देयर इज नो नीड टू मेंशन द नेम ऑफ योर स्कूल, यू जस्ट मेंशन XYZ स्कूल, ABC स्कूल, ओके। और किसने इशू किया था? इको क्लब ऑफ आवर स्कूल। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो बच्चे बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन से, बहुत अच्छी अच्छी कोटेशंस आप इसमें डाल सकते हो। Say no to plastic bags, save the earth, use jute bags, recycle bags, say no to plastic, plastic is very hazardous to health, stop using plastic, injurious to health, plastic costs life, so say no to plastic। तो ये चीजें तो आप अपनी तरफ से बहुत अच्छे से लिख सकते हो। Say yes to paper bags और jute bags, फिर उसके बारे में बिकॉज दे आर रिसाइकल्ड हो सकता है, यूजेबल है, एनवायरमेंट फ्री, ग्रीन एनवायरमेंट है। And then just you draw the picture. So students, this is all about the poster, how you need to attempt your questions. Today just we have solved both event as well as the social awareness posters, and tomorrow just I'll forward some questions and just will discuss these questions. This is all about the topic poster students. Your topic has been over. The questions that I have given you today, I want everyone just to do these questions in your spare notebook. हाँ, जरूरी नहीं है जो मैंने जो एक्चुअली जो आपको फॉर्मेट प्रिंट आउट फॉर्मेट दिया है, PDF दी है, just you will write down the same format in your notebooks. हाँ, I know that mostly 60 to 70, 65 students actually they don't just put pressure on their brain कि हाँ इसकी जगह मैं और भी कोटेशन यूज कर सकता हूँ, और भी अच्छे मैं बोर्ड यूज कर सकता हूँ। But बाकी remaining students who can just use their own vocabulary words, who can use their own quotations, slogans, it would be better for them. और ध्यान रखना मेरा day by day, when you come across any quotation, any other new things, please keep on writing, keep on noticing, because it will definitely improve your vocabulary. Because you do limited work. काफी ऐसे बच्चे हैं जो वर्क हम करते हैं वो भी वर्क कंप्लीट नहीं होगा। बट यू सी ना, अगर when you attempt for your literature exam, everything depends on writing, how you write, how you maintain your sentences. ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, लिटरेचर में मार्क्स बहुत ज्यादा जाने के चांस होते हैं, राइट? जब if you are not in a habit, see how much time is there, where to put the full stop, where to use the capital words, right? Which word I have to write down the capital. Just if you keep on practicing, if you will keep on writing, so you become used to these things. So this is very important. Do your work regular. Whatever the work has been given to you, I want everyone to complete that work on that day only. Don't procrastinate your work. Okay, चलो आज मैं एक वर्ड बताती हूँ, प्रोक्रास्टिनेशन हम यूज करते हैं, प्रोक्रास्ट हम वर्ड यूज करते हैं बिकॉज कुछ मतलब यू नो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, वो सोचते हैं कि हम अपना काम आज नहीं कल कर लेंगे। कल क्या बोलते हो? अरे छोड़ना यार, कल तो क्लास नहीं, आई विल डू इट टुमारो, टुमारो। And you know very well students that tomorrow never comes, never and never comes. If you just sit and you say no, I will do my work today only, ये मैम ने आज काम दिया, मुझे आज ही करना है। अगर जिस बच्चे का काम हो जाता है ना, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो काम आगे मुझे फॉरवर्ड ना करे। कल ही मैंने ना आप लोगों को ये दिया था वर्क, मेन पोस्टर क्या है, फीचर्स, ड्राफ्टिंग, वेज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोस्टर।
I was very happy to see कि some of the students they forward their PDF yesterday only. जिसमें से आशी एक स्टूडेंट है, वो हमेशा रेगुलरली अपना वर्क, शाश्वत है, आशी है, और भी बच्चे हैं जो रेगुलरली अपना वर्क मतलब फटाफट किया PDF सेंड कर देते हैं. You know, it looks good. And this is a way to keep yourself in the good books. और एक अच्छे मतलब हार्ड वर्किंग और रेगुलर स्टूडेंट्स की यही पहचान रही है. चलिए स्टूडेंट्स, दिस आई वांट टू कंप्लीट दिस वर्क इन योर फेयर नोटबुक्स ऑल ऑफ यू. हाँ, अब मुझे किसी का कोई डाउट है रिलेटेड टू पोस्टर्स, यू मे आस्क नाउ. जो पोस्टर्स के बारे में मैंने आपको बताना था, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी डिटेल. But still, if there is any doubt, any queries related to this topic, you ask me. हाँ जी बेटा. हाँ जी, आज तो मैं ऑडिबल हूँ सबको. हेलो क्लास. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी. Yes, ma'am. बेटा किसी को कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो पोस्टर से रिलेटेड, बोलिए. No, ma'am. No, ma'am. ठीक है. No, ma'am. हाँ, तो प्लीज यू जस्ट कंप्लीट दीज क्वेश्चंस. इसके बाद भी एक्चुअली थोड़ा राइटिंग पोर्शन भी हमें करना है, नहीं तो आई विल स्टार्ट विद द चैप्टर. किससे मतलब व्हाट वुड यू लाइक टू डू नेक्स्ट, चैप्टर और सम राइटिंग स्किल्स? हाँ जी बोलो बेटा. चैप्टर. ठीक है. कल भी हम एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि डिस्कस कर लेंगे रिलेटेड टू पोस्टर. अगर आप बोलते हो कि नहीं मैम दीज क्वेश्चंस आर सफिशिएंट, क्योंकि क्वेश्चंस तो ऐसे ही बनेंगे बेटा. पोस्टर दो तरह के हैं, दैट इज सोशल अवेयरनेस और इवेंट. इसी से रिलेटेड ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगी अगर कल मैं देती हूँ. अगर आप बोलते हो ठीक है मैम पोस्टर के कुछ क्वेश्चंस दे दीजिए, सो आई विल प्रोवाइड यू सम क्वेश्चंस टुमारो विदाउट सॉल्यूशन. आई विल गिव यू क्वेश्चन एंड देन विल डिस्कस. ठीक है मैम, इसमें ये हेडिंग डाल देंगे, इसमें हम ये भी कोटेशन लिख सकते हैं, इसमें हम ये स्लोगन यूज कर सकते हैं मैम. राइट? तो व्हाट डू यू नीड स्टूडेंट्स? मैडम क्वेश्चन. हाँ जी बोलो बेटा, बाकी बच्चे बोलिए. Ma'am, questions. ओके. Question. ठीक है, फिर कल ऐसा करते हैं, मैं आपको 5-6 क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर दूंगी राइट बिफोर द क्लास, एंड देन विल डिस्कस इन द क्लास. ठीक है. और उसके बाद इन फ्रॉम नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट विद अ चैप्टर टूट, द डिस्कवरी ऑफ टूट, द सागा कंटिन्यूज. वो वाला चैप्टर करेंगे. ओके. Yes, ma'am. Okay then. See you students tomorrow. But please complete your work and please forward your work to me as soon as possible. वैसे तो जरूरी नहीं है कि bit by bit you may submit your work. After completing the topic you will submit it. लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका लास्ट टॉपिक फिनिश मैंने किया था, उसका भी मेरे पास नोटबुक्स नहीं आई हैं. You have to send your notebooks in the form of PDF. Okay students? Okay then, see you tomorrow students, everyone.